about leaders and talking about how the younger workforce is disconnected with leaders, there's another story we simply could not miss. I'm sure over the weekend, if you were out, you did discuss with your friends about the Starbucks, the newly appointed CEO there, traveling about 1,600 kilometers on a private jet on company cost, only to be in office 3 days a week. Now, Gen Z are up and blazing. There is a meme fest online questioning the environmental impact, especially coming from a company that claims to be so green. Let's just show our audiences some of those memes, because you have users that are contrasting the green paper straw policy that Starbucks seems to have. Starbucks has multiple initiatives, people taking to social media, and we're showing you now some of the memes on your screen. They're slamming the new CEO. They're also slamming Starbucks for this decision in this context. And people are pointing out the irony and what they say is the hypocrisy of a company that so proudly talks about eliminating plastic straws a few years ago. They introduced paper cups as well. You can see these memes, lots and lots of people having fun online. What do you think, Sonal? I do appreciate that we now are in a time where we're holding the upper brass accountable in such a public way. Yeah, see, I love this one, in which he says that just because you're doing this, that means, sat khoon maaf in a way, that all issues have been sorted out. But this is people are holding them to higher sort of standards, which is very true of Gen Z, as we have just discussed. But did you know what is actually the cost of that private jet? There is another meme that will just pop up. If you were to believe these calculations, it's going to cost almost 10 lakh rupees every day just for his transport. Now, the question is, it could well be supported or adjusted in a salary, but then it begs the question, how much is really the salary for Starbucks, a company that is really in middle of a lot of issues? So clearly, a lot is going on this story, and this is not the last we have heard of it. Abhijit, our good friend at Shosha, obviously could not stay away from getting his take on it as well. Sit back and enjoy. हाय मैम, मे आई टेक ऑर्डर प्लीज? हाय, 1 कैपेचिनो प्लीज। मैं बताना चाहूंगा कि पिछले ही हफ्ते हमारा एक नया फ्लेवर लॉन्च हुआ है, बढ़िया गीली गुदगुदी। वो ट्राई करके देखो, बहुत बिक रहा है आजकल। गीली गुदगुदी? हाँ जी मैम, ये हमने ना नया मानसून फ्लेवर लॉन्च किया है अपना भी पिछले हफ्ते ही। इसमें हम इलायची, भुनी हुई अदरक, पपीते के बीज, काली बिल्ली के आंसू, सत्तू का पेस्ट, नहाने का साबुन, आमचूर, उबली हुई शकरकंदी, कछुआ छाप के टुकड़े से सोडा में मिक्स करके देते हैं मैम। बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। कर दूं? अच्छा ठीक है, कर दो। मैम आपका टोटल हो गया है 1,52,000 रुपए। और मैम इसके अलावा हमें ना आपके वो माँ के गहने और घर के कागज भी चाहिए होंगे, है ना? हाँ, वो तो मैं लाई हूँ। और ये लो मेरे सोने का कंगन, एक क्रोसो भी कर देना प्लीज। ओके मैम, नाम क्या है आपका? शीतल। पीतल, डन। मैम आप 40 मिनट वेट कीजिए, मैं आपके सामने आपके जो बाद में आया उनका ऑर्डर पहले देके आपको तड़पा के आपको ऑर्डर दूंगा, ठीक है? आप बैठिए, वेट कीजिए। इस दुनिया में बहुत से सवालों का किसी के पास कोई जवाब नहीं है। जैसे सलमान खान पूरे टाइम सोते क्यों रहते हैं? जैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज अपनी शादियों में इतना हंसते क्यों है? और जैसे स्टारबक्स की कॉफी इतनी महंगी क्यों होती है? भाई तुम न्याय करो। मगर अब इस तीसरे सवाल का जवाब मिल चुका है। The reason why Starbucks has been selling such expensive coffee is so that they can help their CEO come to office. अरे कहना क्या चाहते हो? अरे भाई, कहना हम ये चाहते हैं कि Starbucks के नए CEO हैं ब्रायन निकोल। और देखिए, वैसे तो ब्रायन का जो है वो हाइब्रिड वर्किंग सिस्टम था, लेकिन जैसे ही उन्हें कहा गया कि उन्हें ऑफिस आना पड़ेगा, तो ब्रायन निकोल करके अपनी डिमांड्स बता दी। अब भैया, जहाँ ज्यादा लोग ऑफिस जाते हैं मेट्रो से, कार से, बाइक से, ई रिक्शा से, यहाँ तक कि सड़क पे तैर के, ब्रायन कैलिफोर्निया से सियाटल तक का जो अपना ऑफिस का डिस्टेंस है, विच हैपेंस टू बी 1,600 किलोमीटर्स, वो तय करेंगे एक प्राइवेट जेट के थ्रू एवरी सिंगल डे। Not every day. 3 days in a week. कैलिफोर्निया से सियाटल उतना ही दूर है जितना कि दिल्ली से हैदराबाद। And to further put things into perspective, the cost of a private jet trip from California to Seattle one way is $24,000, which comes around to rupees 20,13,000. 20,13,000 रुपए। भाई, इतने पैसों में तो आप एक लार्ज पेप्सी और एक लार्ज पॉपकॉर्न का बकेट खरीद सकते हो किसी भी सिनेमा हॉल में। But that's not the point. The point is कि thank God he was not born to Indian parents. वरना वो ये बात सुनते ही ब्रायन को घर से निकोल
निकाल देते, ब्रायन को घर से बाहर निकाल देते यार। आई मीन कैन यू इमेजिन द ताने, प्राइवेट जेट में ऑफिस, शर्म कर ले, तेरी उम्र का जब मैं था तो साइकिल में जाता था दफ्तर, एक तू है। सुनो बेटे, जितने पैसे तुम ये खर्च कर रहे हो ना ये प्राइवेट जेट में ऑफिस में आने जाने में होते नहीं, कि अगर तुमने एफडी कराई होती तो मैं बता रहा हूँ 7 साल में तुम्हारा खुद का 2 BHK होता है, ये मेरठ बाईपास में फर्स्ट क्लास मार्बल फ्लोरिंग के साथ। लेकिन कौन समझा, अभी बहुत समझदार, तुम खुद ही कर लो सब चीज। बेटा ऐसा है, देखो पैसे की वैल्यू जो है ना, पैसे की वैल्यू अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगी, जब तुम हमारी उम्र के हो जाओगे तब तुम्हें अकल आएगी। जब तुम्हारे एक पैसे नहीं होगा सेविंग में है, जितनी तुम्हारी उम्र है ना उतने बेटे हमने नौकरी कर रखी है, हमें बहुत तजुर्बा है जिंदगी का, लेकिन नहीं समझना, बहुत समझदार, तुम खुद ही कर लो। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं यू नो इस पूरे इंसिडेंट को सुन के अब वेंसडे से नसीरुद्दीन शाह साहब का डायलॉग याद आ गया। राठौर साहब, लोगों में गुस्सा बहुत है। देखिए भैया, इस कम्यूट को लेकर गुस्सा तो है ही लोगों में, लेकिन उससे भी ज्यादा गुस्सा, उससे भी ज्यादा लोग चीटेड इसलिए फील कर रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं भैया ये सही है, स्टारबक्स वालों तुमने प्लास्टिक की स्ट्रॉ बैन करा के हमें कागज की स्ट्रॉ थमा दी, जो कि आधी कॉफी में घुल जाती है, और अब तुम्हारा सीईओ ये हरकत कर रहा है, शर्म नहीं आती? व्हाट इज योर टेक ऑन दिस एंटायर इशू? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। हमें आपके सजेशंस, आपकी बातें सुनना बहुत 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 पसंद है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। दिस इज मी अभिजीत भट्ट साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ। टाटा।